Now everybody knows cricket, right? Cricket मालूम है ना, सबको देखे है. So in cricket there is most important word called as run rate, strike rate and average. वो बैट्समैन का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, इट इज अबाउट 60 और 80 बोलते हैं. स्ट्राइक रेट इज व्हाट? पर बॉल ही स्ट्राइकिंग, एवरी बॉल इज बीन बॉल्ड, ही स्ट्राइकिंग हार्ड, हर बॉल पे रन बना रहा है. इफ हिज स्ट्राइक रेट इज 60, that it means out of 100 ball he is hitting on 60 balls and taking the runs. Out of 100 balls he is making sure it is his strike is 60. उसका रन रेट ही उतना है. If somebody is hitting 100 ball and making 1 run, उसका strike rate less है. Correct? तो उस डायरेक्शन पे है ना, you have to make sure प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए. एवरी बॉल पे 6 मारने वाला इंपॉर्टेंट है या एवरी बॉल पे सिंगल लेने वाला इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज गोइंग मोर स्ट्राइक रेट एंड रन रेट फॉर यू बेसिकली. वो इंपॉर्टेंट है ना, तो आप कौन सा प्लेयर चूज करोगे? ओवरऑल ये सब चीज करने के लिए भी है ना, देयर इज वन इंपॉर्टेंट अनदर फैक्टर इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन. अगर डिसिप्लिन नहीं है, इसको गोली मार दो सब. अगर डिसिप्लिन है तो इस चीज को करो. डिसिप्लिन इज व्हाट? मेकिंग श्योर दैट यू आर अडहियरिंग टू ऑल दिस. अब मैं बोला कि आप ये रोज शाम में जाके बनाओ, बना के सुबह में इसको फॉलो करो. मैं बोला, आप समझ गए, कुछ लोग नोट भी कर लिए उसको. नाउ हम जाके सो गए, सुबह उठे 6 बजे से 7 बजे रेडी होने का टाइम है, आप मैट्रिक्स बनाते बैठे. Your discipline is ruining your activity. Every day नाइट को 11 से 12 के बीच में करना है तो करना है. आपके सीरियल्स जो आते थे ना पहले, सास भी कभी बहू थी एंड ऑल दोस समथिंग आते थे, सब लोग कपिल शर्मा शो, यू टेक इट के 9 से 10 के बीच में आता है, 10 से 11 के बीच में आता है. If they don't follow discipline in casting that serial to you in a time, whether you will be happy? Very rare example, common example. आपका पानी रोज 2 दिन में एक बार आता है. अगर वो नहीं आया तो कभी 6 बजे आता है, कभी 2-3 दिन के बाद में 10 बजे आता है, कभी 8 दिन के बाद में एक ही बार आता है. If he follows that discipline, you get frustrated in life because you don't know मेरे को कब पानी खर्च करना है और कब नया करना है, कब बर्तन धोना है, कब खाना बनाना है. एवरीथिंग गेट स्क्रैम्बल्ड. सिमिलरली अगर आप इसको फॉलो करने में, इफ देयर इज नो डिसिप्लिन, देन ये पूरी एक्टिविटी स्क्रैम्बल हो जाए. पूरी एक्टिविटी स्क्रैम्बल हो जाए. यू कांट, बिकॉज कोई चीज करने के लिए यू हैव टू हैव सर्टेन प्रिंसिपल. दैट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन. मैं सुबह में 6 बजे उठना है तो एवरी डे I have to get up at 6 o'clock. That is discipline. कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 10 बजे उठ रहे हैं, कभी 6 बजे उठ रहे हैं, कभी रात भर सो ही नहीं रहे हैं. That is not a discipline. When you have a discipline, then you can bang on time. When you have a bang on time, then every work of yours will become productive. Now everybody has a book and pen. Right? Can you open it? I'll give one task to you and I'll give a time. You have to complete that task in a time. Write one sentence. From today, I will practice time management seriously. ठीक है? Everybody understood this line? Seriously. From today I will practice time management seriously. इसमें कुछ डाउट नहीं है ना किसी को जो लिखा है उसमें? सब लोग लिखे? How many are copying? नहीं लिख रहे ना? ठीक है? Now
I'll have a stopwatch. I'll give you 30 seconds. Okay? You have to write this sentence 3 times. I'll tell start. You should be having 4 lines like that. You have written 1 line now. Another 3 line you have to add it. Okay? 3 times you have to write. I'll give you 30 seconds, but make sure how you have written. Spelling should not be spelling, and your way of how you have written, your neatness should be the same. Okay, I'll tell. When I say start, you do it. Start. Sixteen, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Stop. 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 छोड़ दो. Stop. Okay. Now write a second task. Put it 2. Number 2. No. Down. Down. What I given is first task. Now second task you write. I want that to be written 3 times, no matter whether it is correct, right, wrong, cleanliness, neatness there, I don't know. What time I am giving, you should make sure that within that much seconds you have to write 3 times. I want that 3 times should be completed. Spelling अच्छा हो रहा है, writing अच्छा, I don't bother about it. You make sure that अगर spelling अच्छा करके लिखे बहुत ही अच्छा है, बट जितने टाइम में मैं बोल रहा हूं उसके अंदर आप वो 3 लाइन लिखना है 3 बार, वो लाइन से सेम लाइन. ओके, पहले वाले नहीं दिखाना है, नए वाले दिखाना है. ठीक है? I'll give you 15 seconds. You have to write 3 times. Start. 3 times. 15 seconds. Stop. I given you 17 seconds. बताओ किसने कंप्लीट किया, पहला बताओ. हाँ? Nobody completed. ठीक है. फर्स्ट टाइम किसने कंप्लीट किया? तुम्हारा तो बुक पेन ही नहीं है. Give me your book. No problem. Give me. No, I just want to understand the activity. Now you people were busy in writing, right? You people were busy in writing. You people were productive. You people were productive. नहीं है ना? You people are not productive. अगर मैं 15 सेकेंड बोलने वक्त जो सेंटेंस जो लिखे है ना, who have target to accomplish that one, you check your writings. The first time was better or the second time was better, you tell. Correct na? First time sentence was better, you are written, rather than second time. Is because of what? Time and urgency. Correct? Now, have you thought when I giving a task, sir, this is possible or not? बोलते ही लिखे, सब स्टार्ट कर दिए. बट हैव यू थॉट, अब मैं बोलूंगा कि तुम्हें एक पूरा पेज भर के लिख दो 15 सेकंड में, यू आर फूल टू एक्सेप्ट इट. फिर क्यों नहीं हुआ आवाज उठाना? फर्स्ट टाइम तो 30 सेकंड दिया, नहीं हुआ, यू नो इट. सेकंड टाइम में 15 सेकंड देके 3 टाइम दिया, you still know it is not happening, still you have started right. Tell me one person who raised the hand and say, sir, it is not possible. If possible, you show me. ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಸಲಾಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೀವಿ ನಾವು. I just said 10 minutes back, say no politely. You said no.
ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು. This is the problem with us, because we take too many tasks which we not able to do also because of lack of plan. Sir, give me 5 seconds, I just think whether we can do or not. First time when you are writing, you know that को 30 सेकंड में 3 बार नहीं हो रहा है, तो 15 सेकंड में 3 बार कैसे होगा? But I've said no sir, you give a short sentence at least, you give some other task. I don't think so it is possible. If it is possible, let me know how we can do it. I'm telling it is impossible, but you took a task. Now your result is what? Fail. Correct Allah? There is the problem which is in our root. It is because of the atmosphere what is created outside. I'm also a human being. When I am telling you, I might say impractical also, practical also. I also have a common sense, you also have a common sense. Why it is something that when someone who came as a teacher or who is elder in the family, if is asking to do wrong, why you are able to accept it? You should not accept. When it is right, you accept it, no problem. When it is wrong, you should have a gut to stand and say, sir, it is not possible. Then that has how, in what ways we can make it fast and all, that is been think in a different way. But today what I given the task, it is not possible at all. No way it was possible. But still, we took that task. This comes in the reasons of mismanagement of time. These are all reasons, no? Taking a task which is unplanned. First task जो ले रहे हो उसके लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हो, that is the first defect of wasting your time. ठीक है? That is the first task of wasting the time. ठीक है? अभी मैं क्लास ले रहा हूँ and I'll ask between 3:30 to 5 I guess, right, the time. So अब 3:30 to 5 को क्लास है मेरी. I have to tell 5 person के you call me at 4 o'clock. I'll attend your call. और किसी को मैं मिलने के लिए बुलाया हूँ 4:30 बजे, और किसी को बोला हूँ कि I'll come for inauguration at 4:45 and I committed here class. अगर मैं यहाँ से जाके inauguration करूँगा तो आपकी क्लास लूँगा. If I attend a call, can I give you inputs? If I ask some person to meet outside और उसको इधर बैठा के मीटिंग करके आपको सामने बिठाऊंगा, अच्छा लगेगा? So taking too many tasks at a time without a proper planning is hurdle for making an effective time management. Unplanned behavior. सुबह उठे उसके बाद मालूम है कॉलेज जाना है, एग्जाम को जाना है, मालूम पड़ा कल सुबह में कौन सा एग्जाम, उसके लिए पढ़ाई किया नहीं है, कुछ नहीं है. You don't know what has to be done. Taking unnecessary things like, let's say I'll open a Facebook and I'll start scrolling it, which is not giving me any benefit today. Tomorrow I have an exam, but still I scroll. It comes in your time management. Gossiping with others, it comes as a hurdle for time management. टाइम मैनेजमेंट में और आपको दोनों के बीच में जो गोश्त, जो हर्डल आ रहा है, दैट इज योर अननेसेसरी अनवांटेड थिंग्स विच यू डोंट प्लान. अभी मैं बोलता हूं, नाउ यू टेल दैट आई विल राइट एन एग्जाम. हमारा एग्जाम है कल, कौन सा एग्जाम है? मैथमेटिक्स. ओके, एग्जाम्पल मैथमेटिक्स का एग्जाम है. देन यू टेक योर साइंस बुक, यू स्टडी. फिजिक्स लाते हैं, स्टडी करते हो, कन्नड़ा पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, साइकोलॉजी पढ़ते हो, लास्ट में एग्जाम से 1 घंटा पहले मैथमेटिक्स पढ़ते हो. विल यू बी अकम्प्लिश इन कंप्लीट यूनिट एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स? अच्छे से कर पाओगे? तुम्हारे सामने पहाड़ है मैथमेटिक्स का, यू नो इट एंड यू नो दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो यू फोकस ऑन व्हाट इज बीन इन फ्रंट ऑफ यू फर्स्ट उसके लिए काम करो. When you do that with focus, no, forget about everything get failed, no problem. एक तो पूरा हुआ, I scored 99 in maths, फेल हुए दूसरे में जाने दो, no problem.
You can again sit and do it. You have satisfaction that one. वो भी पढ़ने जाके सब में फेल होना अच्छा है, एक में पास होना अच्छा है. That is what you have to prioritize. First क्या करो? Let's say there is a room of scrap. ये पूरा रूम स्क्रैप से भरा हुआ है. That scrap is knowledge. Whatever I thought you know till now, I am giving in one nutshell example. This room is a knowledge scrap है. जैसे इसमें बुक्स है, पेन है, कीबोर्ड है, माउस है, मार्कर है, बोर्ड है, टीवी है, सब कुछ पड़ा हुआ है. फैन, चेयर्स, योर बैग्स, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, एवरीथिंग इज बीन लाइंग इन दिस ऑल एज अ स्क्रैप. पूरा इधर उधर स्क्रिबल होके पड़ा है, पूरा लोडेड हुआ है रूम. यू इमेजिन, जस्ट इमेजिन के आप जैसे एंटर किए तो ये पूरा भर के पड़ा है, ऐसे स्केटर्ड होके पूरा. नाउ लेट्स से दीज आर योर टास्क. ये पूरे आपके टास्क है. नाउ टू हैव टू कंप्लीट यू दिस टास्क बाय अरेंजिंग एवरीथिंग इन अ प्रॉपर ऑर्डर. ये आपका टास्क है, ऑब्जेक्टिव है. बेसिक क्या ऑब्जेक्टिव है? आपको 4 घंटे का टाइम दिया जा रहा है. आप कितने लोग हैं, इतने सब लोगों को, कि अभी जैसा पड़ा, अभी जैसा रखा है अरेंजमेंट, ये सब स्केटर्ड होके पड़ गया है नीचे. तो अभी इसको आप लोग को आना है and you have to take out and make an arrangement in 3 hours or 4 hours, whichever the time is given to you. Now first thing what you do is you come and see. ठीक है? You try to identify objects. क्या क्या करना है. So in any activity, let's say marriage, exam, go for shopping, for festival, birthday celebration, किसी के शादी में जाना है, or doing some event, or taking a bus, purchasing a bike, purchasing a dress, anything, everything you think this kind of activity. तो सब कुछ scribble होके पड़ा है. Now, when you come inside, you try to pinpoint objects. Somebody will be able to find where are the books lying. आपको कहीं पे भी देख रहा है तो books किधर है आप देखोगे first. Some other will see chairs किधर है. Some other will see where are the pen. कोई देखेगा board किधर है, कोई देखेगा डेस्कटॉप किधर है, लैपटॉप किधर है. एवरीथिंग यू विल फाइंड आउट. तो पहले प्रॉब्लम्स या जो भी टास्क है ना, यू फाइंड आउट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड टास्क. ठीक है? इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है आपके लिए? फर्स्ट क्या चाहिए पढ़ने के लिए बुक रूम में, और टू अरेंज है बुक एंड पेन इज इंपॉर्टेंट. यू ट्राई टू प्लग द बुक एंड पेन फर्स्ट. वो लेके आप साइड में रखो. व्हाट यू आर डूइंग इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट को आप क्या किए, साइड में रख दिए. लाइक व्हेन यू गो एंड बाय अ शर्ट एंड पैंट फॉर यू, वो ला के रख देता है. फर्स्ट व्हाट यू विल पिक, जो तुमको अच्छा लगा, जो तुमको पसंद आ रहा है, जो अच्छा है, जो आपके बजट में, यू ट्राई टू पिक दैट, राइट? सिमिलरली फॉर गर्ल्स ऑल्सो इट्स द सेम थिंग. व्हेन यू गो फॉर अ शॉपिंग, यू ट्राई टू सी दिस कलर इज नॉट विथ मी, दिस डिजाइन इज नॉट विथ मी, आई हैव टू हैव दिस. ये बजट में चाहिए, नया पैटर्न है, पुराना पैटर्न है, एवरीथिंग यू विल फाइंड आउट. वो दिमाग में चलते रहता है आपके, बट यू ट्राई टू थिंक कि मेरे को ये चाहिए, पहला ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ. यू ट्राई टू कलेक्ट वन साइड. नाउ आउट ऑफ ऑल द स्क्रैप व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू टेक आउट फर्स्ट. वो ए है आप. अंडरस्टूड? रिलेट कर रहे हो अभी? आउट ऑफ ऑल दैट स्क्रैप यू टेक ए फर्स्ट आउटसाइड. नाउ सेकेंड कम्स इज, उसके बाद में मेरे को क्या चाहिए, बुक ली हूं, बैठ के लिखना है. तो बैठेंगे किधर? सेकेंड प्रायोरिटी आई विल गिव टू चेयर्स. फिर आई विल प्लग द चेयर्स. पूरे चेयर्स निकाल के अब बी को प्रायोरिटाइज करें. थर्ड बुक है, पेन है. अब टीचर जब पढ़ा रहे तो आई नीड अ बोर्ड टू ट्राई टू प्लग द बोर्ड्स. तो मेरा बोलने का मतलब ये है, व्हेन यू हैव टू मेनी एक्टिविटीज, नो, यू कंसिडर टू मेनी एक्टिविटीज एज स्क्रैप, एंड इन दैट स्क्रैप यू वांट टू फाइंड आउट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू लर्न. करेक्ट? आउट ऑफ दैट स्क्रैप, नो, उसको आप पहले प्रायोरिटाइज से फर्स्ट यू विल चंक एवरीथिंग, क्या है देखोगे, उसके बाद उसको प्लग करोगे, देन यू एग्जीक्यूट. चेयर लिए, बुक लिए, बोर्ड लिए, पेन लिए, सब हो गया. उसके बाद में खाली बैठे तो प्रोडक्टिव हो गए. टू अटेंड द क्लास ऑल्सो फॉर दैट अगेन. So execution is also important. So in this line, no, in a nutshell, what I want to conclude is, whenever you do a task, whenever you take an objective, जब भी आप कोई objective ले रहे हो तो उसको I'll give it a drawing to you basically. First you have a broader objective.
ठीक है। ऑब्जेक्टिव से पहले आता है गोल। एग्जाम्पल स्टडीज को लेके ही दूंगा। यू हैव अ गोल ऑफ बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, जो भी है वो गोल है। उस गोल के लिए यू विल मेक एन ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है? कौन से कॉलेज में पढ़ना है, दैट्स एन ऑब्जेक्टिव। आई वांट टू स्टडी इन दिस कॉलेज एंड बिकम दिस वन, ठीक है, दैट्स एन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में आपको टास्क आएंगे। you break down into task। टास्क क्या हो गया? मल्टीपल टास्क, जितने भी है उतने बना लो। फॉर दैट आई नीड अ फंड्स, आई नीड एन एग्जाम एलिजिबिलिटी, माई एज, फिर क्या बोलते हैं, माई फैमिली एंड फ्रेंड्स शुड एग्री, ओपिनियंस बेसिकली, वो टास्क है आपके लिए। बुक्स है, आपका इंटरेस्ट लेवल है, फिर आपका टाइम सेटिंग है, ये सब आप टास्क में डिवाइड करोगे। कॉलेज कौन से टाइम पे है, मेरे घर से कितना दूर है, सो दिस ऑल टास्क विल कम इनटू पिक्चर टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट। इसको आप क्या करते हैं? डिसिप्लिन से जोड़ते हैं। ये सब टास्क मालूम पड़ गया अभी आपको, तो इसको डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे तो ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। अभी टास्क को फाइंड आउट करने के लिए यू हैव दैट स्क्रैप, वो स्क्रैप्स में से आप टास्क ढूंढ के निकालोगे। डिसिप्लिन से क्या करेंगे आप? फॉर एवरी टास्क यू गिव टाइम, टाइम में स्प्लिट करो। अनवांटेड टास्क को आप डिलीट करो। फॉर अनवांटेड टास्क यू डिलीट इट। जैसे मेरे को आप स्कूल या कॉलेज जाने के लिए आई नीड 10 पेयर्स ऑफ ड्रेसेस, 2 पेयर ड्रेसेस में भी हो सकता है। अननेसेसरी 8 पेयर्स आई हैव टू वेयर, डिलीट इट, व्हिच इज नॉट नेसेसरी, करेक्ट। आई शुड हैव, मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव soft copy of all the books, I can see laptop and I can use it. Why to spend 5-10,000 and getting a new books? Important है, अगर आपके पास है तो ले लो, नहीं है you delete it. So you break down all the tasks, make it which are very important and urgent. उसको आप urgent में कर लो, discipline से जोड़ लो कि what time I have to get up, 6 o'clock, what time I have to get ready when I go to college, what is my playing time, what is my doing a phone call for friends टाइम, उसके बाद में टीवी देखने का टाइम कितना है, मैरिजेस को कौन से जाना है नहीं जाना है, एवरीथिंग यू ब्रेकअप एंड पुट इनटू अ डिसिप्लिन एंड एग्जीक्यूट करो। नाउ गूगल हैज गिवन यू इन योर ऑल फोन्स, नो, दिस इज द टाइम मैनेजमेंट ना। ये एक्टिविटीज करने के लिए व्हाट ऑल थिंग्स, हाउ आई सेड यू, प्रोडक्टिव रहना, अननेसेसरी थिंग्स को आप डिलीट कर दो एंड ऑल दोस थिंग्स, ब्रेक इनटू टास्क, टास्क को आप डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट कर दो, यू विल अचीव द प्रोडक्टिव टास्क। नाउ टू डू ऑल दोस थिंग्स, नो, द easier thing which is very handy for you guys, might be some people know it or I don't know, which I use it personally, that is called as to-do list. You have an app in Google called as to-do list or Google Notes basically, or in Google Calendar you can put your tasks basically, or you get one more app called as Task Manager also. So you download that, write the task daily. To-do list is very important. To-do list is as good as writing your task. To-do list में आप पूरे चीज लिख दो, जो भी आपको चाहिए, हैफेजर्डली आप लिख दो। सुबह में उठना है, ये करना है, ये करना है, ये सब लिख दो। लिख के है ना, whenever you see, you open the task, you complete it, you strike off. You have an option there also to strike it, which is completed. You have an option to remind also. 4 बजे मेरे को एक नोट्स के लिए दोस्त को फोन करना है, you put a reminder in your Google Notes or your calendar. It 15 minutes before आपको रिमाइंड करेगा आपको फोन करना है। आपको खाना खाना है, रिमाइंड करेगा, आप टाइम डाल दो, 1:45 को मेरे को रिमाइंड करो खाना खाना है, 2 बजे मैं खाना खाऊंगा। It will remind you. 4 to 5 is my sleeping time. Remind me. 5 to 6 is something I have to go play or I have my own leisure time. मैं चाय पीऊंगे, टीवी देखोगे, बाहर घूमने जाऊंगे, फोन पे बात करूंगे, फेसबुक देखेंगे. That's the time you have. 6 to 7 I have to complete one assignment. 7 to 8 one more assignment completed. 8 to 9 थोड़ा household work करना है. 9 to 10 is my family time and food time. 10 to 11 I have to read or by heart or do something personal work. 11 o'clock I'll sleep, again I'll get up at 5 o'clock.
5 o'clock का अलार्म रखो. You make a to-do list, strike off which is not important, or sorry, list down all the things, prioritize, make into tasks with a discipline, try to complete and strike off each and everything. You will write that I'll get up at 5 a.m. सुबह में मोबाइल देख दिए, strike off कर दो, 5 बजे उठ गए. Now what is, I have to go for prayers, get fresh, लिख दे टास्क, वो खत्म हो गया, प्रेयर खत्म करके आपने फ्रेश हो गए तो उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो. नेक्स्ट, व्हाट इज रिमेनिंग इट विल शो यू. और आपको लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है, टास्क ज्यादा रहा है, ऐसे नहीं होना है जैसे 30 सेकंड में 3 लाइन नहीं हो रहे हैं. यू नो दैट वो पूरे टू डू लिस्ट में कौन सी चीज कल भी कर सकते हैं जो आज स्ट्राइक ऑफ कर दे. यू कैन पुट दैट टू डू लिस्ट जो आज नहीं हो पा रही है विद XYZ रीजन, उसको आप कल की टू डू लिस्ट में डाल दो, फॉलो अप टुमारो करके. It's simple. It's very simple. But you do whatever, time is 24 hours. You do whatever, time is 24 hours. Within that time, how you plan, execute. Today it might look very easy for you because it is not linked with money everything. Tomorrow when you grow up, everything is linked with money. अगर यही क्लास को, if you say that एक दिन क्लास ले रहे, एक दिन नहीं ले रहे, आप आ रहे इधर, नो टुडे दैट टीचर इज नॉट देयर, कैन यू कम टुमारो, टुडे इज हॉलीडे, यू कम टुमारो, टुडे थोड़ा प्रिपेयर्ड नहीं है टीचर, आप कल आ जाओ, व्हाट यू विल से, क्या बोलते हैं तुम इसको, फुकट में आ रहे क्या, पैसा दे के आ रहे हैं और हम टाइम खर्चा कर रहे हैं अपना, वहां से रेडी होके घर पे सब काम छोड़ के वी आर कमिंग एंड स्टैंडिंग हियर पुटिंग, बस को पैसा दे रहे हैं, पेट्रोल को पैसा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, आके रुक रहे हैं, खाली बैठने के लिए रहेंगे. नहीं, वी वांट अ क्लास, यू विल टेल राइट, व्हाई यू विल टेल, बिकॉज़ इट अटैच्ड टू मनी. टुमारो बाय हुक और क्रूक, इफ यू फॉलो इट विल अटैच टू योर मनी, इफ यू डोंट फॉलो आल्सो इट अटैच टू योर मनी. कैसे मालूम है, अटैच रहोगे तो पैसा बचेगा, अटैच नहीं रहोगे तो पैसा जाएगा. इन बोथ वे इट इज अटैच्ड टू. करेक्ट. ट्रेन का एग्जांपल ले लो, यू टेकन अ टिकट, एवरीथिंग. ट्रेन इज डिसिप्लिन्ड, दे रन ऑन टाइम, दे विल नॉट वेट फॉर यू, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. करेक्ट. वैसे ट्रेन भी, यू डू गो देयर, आपको 5 बजे का ट्रेन है, 5:30 बजे जाओ, आ रहा है रुको करके बोलेंगे नहीं. ट्रेन का तो कोल जो भी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कोल उतना ही जा रहा है ना. आपको बटा लेने से कुछ ज्यादा जा रहा है क्या, उतना ही जा रहा है. आपको नहीं बटाने से कुछ कम जा रहा है क्या, उतना ही जा रहा है. तो व्हाई कांट वी बी मोर प्रोडक्टिव ऑन इट. सो द क्रक्स ऑफ इट इज व्हाटएवर यू डू नो, फॉर दैट make sure 2 things are very important. One is your plan and objective. Second one is, if you do these 2 things, rest everything falls. अब सुबह में 5 बजे मेरे को उठना है टास्क करने के लिए. 5 बजे उठना क्या है, डिसिप्लिन है. ठीक है. 5 बजे उठ के बैठ जाऊंगा तो 5 बजे उठा क्यों मैं, टास्क कंप्लीट करने. तो मैं डिसिप्लिन हूं, 5 बजे उठ रहा हूं तो अब उठा ही हूं तो कर ही लेता हूं टास्क. अब सुबह में 5 बजे उठना है, उठे ही 7 बजे, डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं, तो टास्क भाड़ में गया ना. 7 बजे खत्म होना टास्क मेरा, अब 7 बजे उठ के टास्क करने जाएंगे तो कहां से रहेगा. सो इफ यू हैव दिस डिसिप्लिन फर्स्ट, टास्क विल ऑटोमेटिकली कम टू पीस. उसके बीच में आपको सब कुछ आएगा, फ्रॉडुलेंट कॉल आता है, गॉसिप का कॉल आता है, कोई बुलाता है कि चल थोड़ा उधर जाके आएंगे, सम अननेसेसरी कॉल्स विल कम, फेसबुक देखेंगे, कोई फोन आया ऑटोमेटिक वो इधर उधर की बातें करने लगेंगे, पावर चला गया, लाइट चले गई. देयर आर मेनी टाइम वेस्टर्स विल कम इन बिटवीन, वो दैट आर ऑलवेज देयर, यू हैव टू नो हाउ टू अवॉइड. अभी हो सकता है आई एम नॉट यूजिंग द LCD स्क्रीन, हो सकता है लाइट चले गया, अंधेरा पड़ गया, ठीक है, बट आई हैव टू कंप्लीट वॉट एवर आई थॉट. मेरे को जो कंप्लीट करना था, टाइम मैनेजमेंट को कंप्लीट करना. व्हाट आर द वेज टू डू इट. ए लाइट चला गया, कल देखेंगे, तो कल कोई और टास्क रहेगा मेरा, आई शुड कम एंड डू इट.
आज कैसे करेंगे, लाइट तो भी नहीं आएगी आधा घंटा वाई शुड वेस्ट। टॉर्च ऑन करो सब अपना, विल ट्राई टू कंप्लीट। हाँ थोड़ा चैलेंज है, बट एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश द थिंग्स। नहीं करना है तो यू हैव ऑल द रीजंस टू डू नो। करना है यू हैव ऑल द रीजंस टू से यस। इन लॉकडाउन मेनी पीपल से दैट मेरे को बाहर जाना ही है, बाहर गए बिना मेरे को चलता नहीं, दोस्त को मिले बिना मैं रहता नहीं एंड ऑल। एवरीबडी सेड हेल लॉट ऑफ थिंग्स। लॉकडाउन में सब लोग बेटर है घर पे। सो रादर देन someone stopping us to do, why we make sure that why can't we do from us, which is needed for us, not for others' sake. My friend is doing like that, why I should do this? I'll also do like that. No, you plan your day, it's your life. If you become IAS, you'll not give money to her. If she become IAS, she'll not give money to you. Then you should not follow her. You follow for good, which is good for you. If both our objectives are matching, you follow, no problem. You want to become a doctor and she want to become an IAS and you want to follow her. Link ही नहीं है. There is no link at all. So do something which have a link. Which is only for you. For that, no, that require one more class to explain. First to understand who are you. I'm not neighbor. I'm not someone to be. I'm not you. I'm not we. I am me. What is me? To understand that me, it requires again an elaborative class for it.